Okay, today we are moving toward another type of operators, which is logical operator. Okay, we have already seen arithmetic operator, which is plus, minus, multiply, divide, and modulus operator. These are arithmetic operators. Assignment operator, we have seen basic assignment operator and compound assignment operator, in which all the operators are combined together with the assignment operator and makes a an compound assignment operator, which is called compound assignment operator. Plus equal, minus equal, multiply equal, divide equal, and modulus equal. These all are called compound assignment operator. There are two types of assignment operators, which is one is basic assignment operator and the other one is compound assignment operator. In compound assignment operator, we have 1, 2, 3, 4, 5 because we have 1, 2, 3, 4, 5 arithmetic operators. So these arithmetic operators make a compound assignment operator with combining together with the assignment operator. ठीक है, हम जब असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कंबाइन कर लेते हैं तो उससे हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता है. एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स आर ऑल दीज which are used to compare two things, like if we want to compare 5 with 6, if I say 5 double equal to 6, then it gives us the result of false because it is not equal to 6. 5 is not equal to 6. That's why the result is Boolean and it gives us false result. Okay. If 6 double equal to 6, then it gives us true True. because these both are equal. So double equal is used to compare two things, two numbers or two variables that are both equal. But assignment operator is different from this. Single assignment operator is used to assign values to some variables, like a is equal to 5. It doesn't say that a is equal to 5, but it says that 5 has the value, a has the value of 5. Okay, this 5 is assigned to a. Okay, we have given 5 to a. It doesn't say that a is equal to 5, but it says that 5 is assigned to a. A is a variable and we have assigned 5 to a. So if we are using anywhere the a variable, so it means we are using 5 because a has the value of 5. Okay, but this operator is different from this because it says these both are equal. If these are equal, then it gives us true, and if these are not equal, then it gives us false. Okay, and the other operator is not equal. Not equal, which is a relational operator. If we say 5 not equal 6, then it gives us the result true because 5 is not equal to 6. So its result is true. It is true that 5 is not equal to 6. But if we say 5 is not equal to 5, then it gives us the result false because 5 is equal to 5 and it says 5 is not equal to 5. So it is false.
So these are three types of operator which we have learned, and the next type of operator is the logical operator. So let's move to the logical operator topic. Okay, this is logical. Logical operators are used for building compound conditions. कंडीशन मीन्स कोई शर्त. शर्त क्या है कि अगर हम बोलते हैं इफ, अगर ए डबल इक्वल टू ए, यानी हमने एक शर्त बताया कि अगर ए बराबर है ए का, ठीक है, इस तरह का शर्त होता है, यानी इस तरह की कंडीशन होती है. लेकिन यहाँ पे कहा गया है कंपाउंड कंडीशन. तो कंपाउंड कंडीशन का मतलब है यानी ज्यादा कंडीशंस है हमारे पास, यानी दो या दो से ज्यादा कंडीशंस है, एक से ज्यादा कंडीशंस है हमारे पास जिनको हम कंपाउंड कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं. जिस तरह आपने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था, उसमें दो चीजों को कंबाइन किया गया था, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर को, एक असाइनमेंट ऑपरेटर को. इसी तरह ये कंपाउंड कंडीशन में यूज होता है लॉजिकल ऑपरेटर. अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन हो, जैसे मैं कहता हूं कि ये दो कंडीशंस में अगर एक सही हो तो फिर आप ये काम करो, ठीक है. तो एक कंडीशन हमारे पास हो गया कि ए डबल इक्वल टू ए, और फिर मैं एक दूसरा कंडीशन बताता हूं कि ए जो है नॉट इक्वल टू ए. ठीक है. अगर मैं कहता हूं कि ये दोनों कंडीशन में से कोई एक भी सही हो तो फिर आप ये काम करो, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि हम कहेंगे कि ये कंडीशन या ये कंडीशन. तो या हमने कहा, या का मतलब है और हमारे पास और ऑपरेटर है यहाँ पे, और इसके लिए यूज होता है साइन, ये डबल लाइन, ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे इस तरह डबल लाइन लगा लें इसके बीच में, तो हमने इन दोनों को कंपाउंड कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, क्योंकि हम दोनों को चेक करेंगे, ठीक है. तो ये कंडीशन हम बोलते हैं कि अगर ये कंडीशन सही है या ये कंडीशन सही है तो फिर ये काम करो, ठीक है. समझ आ गई है. हम कहते हैं कि अगर ये कंडीशन सही है तो फिर इसको छोड़ना नहीं है, लेकिन ये भी चेक करो कि या इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सही होगा. तो या तो ये सही होगा या ये सही होगा, क्योंकि बीच में हमने या कहा है और कहा है. और या का इंग्लिश वर्ड क्या है? और. दिस और दिस. इफ इट इज करेक्ट और दिस इज करेक्ट देन डू दिस. यानी दोनों में से कोई एक भी करेक्ट हो तो कुछ काम करो, ठीक है. तो ये और ऑपरेटर हमने यूज किया, और ये दोनों कंडीशंस को हमने कंपाउंड कर दिया, यानी कंबाइन कंडीशंस बन गए दोनों को, यानी दोनों को हम इकट्ठे चेक कर रहे हैं, ठीक है. लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज फॉर बिल्डिंग कंपाउंड कंडीशंस. ये लॉजिकल ऑपरेटर हमने यूज किया, और इसने क्या किया, इन दोनों को बिल्ड किया आपस में, ठीक है. फॉर बिल्डिंग कंपाउंड कंडीशन, ये यानी ये एक ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है, इसके बीच में हम एक कंडीशन लिखते हैं, लेकिन हमारे पास अभी दो कंडीशन है, उससे हमने एक बनाना है, रिजल्ट एक ही निकालना है, ठीक है. तो इसलिए हमने दोनों को कंपाउंड कर दिया, किसकी मदद से? लॉजिकल ऑपरेटर और की मदद से. या अगर मैं कहता हूं कि दोनों कंडीशन बराबर होने चाहिए, दोनों कंडीशन सही होने चाहिए, ठीक है. मैं कहता हूं कि इफ ए की कोई भी वैल्यू इज ग्रेटर देन, इज लेस देन और इक्वल टू 5 एंड ए, 5 is less than or equal to 5 and a, 5 is greater than or equal to 5 and a, 5 is less than or equal to 5 and a, 5 is greater than or equal to 5 and a, 5 is less than or equal to 5 and a, 5 is greater than or equal to 5 and a, 5 is less than or equal to 5 and a, 5 is greater than or equal to 5 and a, 5 is less than or equal to 5 and a, 5 is greater than or equal to 5 and a, 5 is less than or equal to 5 and a, 5 is greater than or equal to 5 and a, 5 is less than or equal to 5 and a, 5 is greater than or equal to 5 and a, 5 is less than or equal to 5 and a, 5 is greater than or equal to 5 and a, 5 is less than or equal to 5 and a, 5 is greater than or equal to 5 and a, 5 is less than or equal to 5 and a, 5 is greater
A
is equal to is greater than or equal to 1। अभी ये दो कंडीशंस मैंने दे दिए और मैं कहता हूं कि दोनों सही होने चाहिए। एक कंडीशन का मतलब है कि a इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी हमारे पास 5 होगा और 5 से कम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में हम बोलते हैं कि एक से ज्यादा होना चाहिए या एक के बराबर होना चाहिए, a इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक से लेकर 5 तक हम दोनों कंडीशन को आपस में मिला रहे हैं, तो इसके लिए यूज होता है एंड ऑपरेटर और इसका साइन है डबल एम्परसेंड। इस तरह डबल एम्परसेंड हमने इसके बीच में यूज किया, तो ये एक कंपाउंड कंडीशन बन गया, एक कंडीशन बन गया हमारे पास। तो इसका रिजल्ट हमारे पास तब सही होगा जब दोनों सही होंगे। इसमें हमने किसी एक को सही करना था, अगर एक भी सही होता तो हमारा यानी काम चल जाता। इफ अगर एक भी सही है, या ये सही होना चाहिए या ये सही होना चाहिए, अगर ये सही है आपके ख्याल में, ये तो ये हम देख रहे हैं कि a इज नॉट इक्वल टू a, क्योंकि ये गलत है, दिस इज फॉल्स, बट दिस इज ट्रू। तो इट सेज कि इन दोनों में से एक सही होना चाहिए, तो ये सही है तो हमारा फिर भी काम चल रहा है। अगर ये सही है या ये सही है, बीच में या है, या यानी दो लाइंस का जो सिंबल है वो और के लिए, या के लिए यूज होता है, ठीक है।